Hello students, how are you all? I hope you are perfectly fine and doing your studies at your home. Students, this is Saumitri Yadav, Assistant Teacher of Lakshmi Prasad Memorial Public School, which is situated in Golam Bazaar, Gorakhpur. Students, I am here with a new video lecture in which we will discuss the remaining part of the story. So firstly, I will remind you once again that in the previous video lecture we have read about the first page of the chapter, which is the prodigal son. Now we will discuss the remaining part of the story. So in the previous video lecture I have taught you till satisfy his hunger. So firstly, I will revise which I have taught you in the previous video lecture. This is a story about a prodigal son of a rich farmer, which is taken from the book Bible. Okay, and in this story, this younger son demanded half of his will of his father. Father didn't want to see unhappy his younger son, so he counted his all money and gave half of its money to his younger son. By taking this money, the younger son was ready to go a foreign country. Okay, when he was reached there, he bought a very grand house. Okay, in that house he spent all his gold. Okay, and in this house he always invited his new friends, but after a few days his all gold money was spent away. Okay, उसने पूरा जो है सारा का सारा गोल्ड और मनी जो है स्पेंड कर दिया. Now he had to go to the money lender for asking some another gold, but he was unable to pay his debt, so he has to sell his house. Now he was in the farmer house where he looked after the herd of his sheep. Okay, the only way is the farmer paid him only small plate of food every day. Now इतना बेटा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था. नाउ वी आर रीडिंग फ्रॉम हियर. So let's start. One day when he was laying on the hard ground, he thought of his home and his father who loved him. He remembered that his father's servant lived in a comfortable house and had plenty to eat. Now one day he was laying at the hard ground and he thought of his home and also his father. He thought that his father's servants now are living in the comfortable houses and they have plenty of food to eat. Now how many of father's servants have more than they need? He said to himself, while here I am dying of hunger. उसने ये सोचा कि उसके फादर के पास जितनी उनकी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा उनके पास नौकर हैं और यहाँ पे मैं जो हूँ भूख के मारे मर रहा हूँ. नाउ आई विल गो बैक टू माई फादर एंड से फादर आई एम नो लॉन्गर वर्दी ऑफ बी कॉल्ड योर सन. देन ही डिसाइड टू गो टू हिज फादर. उसने फैसला किया कि और फादर के पास जाएगा एंड कहेगा कि ही वॉज नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन. ओके, वो उसके सन कहलाने के योग्य नहीं है. लेट मी कम होम, मुझे घर आने दीजिए, एंड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ योर सर्वेंट्स, और मेरे साथ जो है एज अ सर्वेंट आप बिहेव कीजिएगा. बट नाउ गिव मी परमिशन टू कम होम बैक. द यंग मैन स्टूड अप एंड सेट ऑफ फॉर होम. दैट यंग मैन वॉज now going to home back, and it was very different journey that he had made 2 years before. Although he was dirty, barefoot and ragged, he was unclean and barefoot. उसने पैरों में कुछ पहना नहीं हुआ था, and his clothes were also ragged. Okay, कपड़े फटे हुए थे. His father recognized him from a long way off, और उसके फादर ने उसे दूर से ही पहचान लिया कि he was his younger son. Overjoyed means बहुत खुशी में, the old man ran to meet
his son. ओके, वो दौड़ के अपने बेटे से मिलने के लिए आया. Father cried the young man, please forgive me. ओके, यंग मैन ने कहा, फादर प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. द ओल्ड मैन थ्रू हिज आर्म्स अराउंड हिज सन एंड किस्ड हिम. देन ही सेड टू अ सर्वेंट, फेच माई बेस्ट robe फॉर हिम, ब्रिंग शूज़ फॉर हिज फीट एंड अ रिंग फॉर हिज फिंगर. ओके, ओल्ड मैन ने कहा ओके अपने सर्वेंट से कि मेरा सबसे बेस्ट रोब जो है उसके लिए लेकर आओ, एंड ऑल्सो शूज़ फॉर हिज फीट, उसके पैरों के लिए फीट लेके शूज़ लेकर आओ, एंड ऑल्सो अ रिंग फॉर हिज फिंगर. Another servant he said, we must hold a feast to celebrate this great day. हमें जो है इस ग्रेट डे को सेलिब्रेट करना चाहिए और एक दावत को और घर पे एक दावत रखनी चाहिए. For my son was dead and is alive again. मेरा बेटा जो है पहले मर चुका था and now he is alive again. He was lost, वो खो गया था, and has been found, और अब वो मिल चुका है. Invite all my friends and neighbors so that they may share my joy. ओके, उसने कहा कि मेरे सारे फ्रेंड्स नेबर्स को इनवाइट करो ताकि वो मेरी खुशी में शेयर कर सके. दैट इवनिंग द एल्डर सन हु हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड्स, जो बड़ा बेटा है बेटा वो क्या कर रहा था, अपने फील्ड में काम कर रहा था. केम होम, घर वापस आया. ही आस्क्ड द सर्वेंट वाई म्यूजिक एंड सॉन्ग वर हर्ड फ्रॉम द हाउस. उसने पूछा एक दोस्त से, अपने नौकर से पूछा कि घर से इतनी म्यूज़िक और सॉन्ग की आवाज़ क्यों कैसे आ रही हैं. When he heard that his father was celebrating his younger brother's return, he was very upset. जब उसके फादर ने ये सुना कि जब उसने ये सुना कि उसके फादर जो हैं अपने यंगर ब्रदर की वापसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अपसेट हो जाता है. He told the servant to ask his father to come out to him. His father came at once. उसने अपने फादर को बुलाया, उसके फादर तुरंत आ गए and greeted his son joyfully, और उसका बहुत ही जॉयफुली से स्वागत किया. योर ब्रदर हैज़ कम होम, तुम्हारा भाई जो वापस आ गया. उसने कहा, कम एंड जॉइन द फीस्ट, आओ और हमारे साथ मिलके दावत खाओ. द एल्डर सन रिप्लाइड एंग्रली, उसने गुस्से से होके एल्डर सन ने रिप्लाई किया, वाई शुड आई फादर, मैं क्यों फादर. आई हैव वर्कड फेथफुली फॉर यू, मैंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फेथफुली वर्क किया है. बट यू हैव नेवर गिवन मी इवन अ यंग गोट सो दैट आई कुड इन्वाइट माई फ्रेंड्स फॉर अ मील. मैंने आपके साथ इतना फेथफुली वर्क किया, लेकिन कभी भी आपने जो है यंग गोट भी नहीं दिया था ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को मील के लिए इनवाइट कर सकूँ. एट द मोमेंट माई ब्रदर कम होम, लेकिन मेरा भाई वापस आ गया है. आफ्टर वेस्टिंग योर मनी, आपके पैसे को बर्बाद करके, मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, आप अपने आप को मूर्ख से बना रहे हो. यू इन्वाइट एवरी वन टू अ फीस्ट, आपने सबको बुला लिया. नो आई विल नॉट कम इन, मैं नहीं आऊँगा. द फादर फेल्ट डीपली सॉरी, फादर को बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील हुआ. ही अंडरस्टूड वाई हिज एल्डर सन वॉज सो बिटर एंड जेलस. अब उसे समझ में आ गया, फादर को समझ में आ गया उसके एल्डर सन जो है इतना बिटर और जेलस क्यों हैं. माई सन, ही सेड जेंटली, यू आर ऑलवेज विद मी, तुम हमेशा मेरे साथ थे. एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा. बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड आई फील टुडे, लेकिन वो समझो जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ. यू आर अ गुड सन, तुम बहुत ही अच्छे बेटे हो. आई हैव नो रीज़न सो टू फियर लूजिंग यू, तुम्हें खोने का मुझे कोई भी डर नहीं था. एज आई डिड इन द केस ऑफ माई यंगर सन, जैसा कि मेरे यंगर सन के केस में था, क्योंकि वो बाहर जा चुका था और उसे डर था कहीं खो ना जाए. ही वॉज लॉस्ट एंड ही हैज़ बीन फाउंड. आई हैव गॉट अ सन बैक, मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया. एंड यू आर ब्रदर, तुम्हें भाई. फॉरगिव हिम हिज फुलिशनेस एंड वेलकम हिम बैक, और उसकी मूर्खता को माफ़ कर दो और उसका स्वागत करो. एल्डर ब्रदर अंडरस्टूड द विजडम ऑफ हिज फादर्स वर्ड्स, बड़ा भाई जो है उसकी अपने फादर की जो विजडम भरी बातों को समझ जाता है. बोथ फादर एंड सन एम्ब्रेस्ड ईच अदर, फादर और सन एक दूसरे को गले लगाते हैं. एंड वेंट इनटू द हाउस टू रिजॉइस, और इन्जॉय करने के लिए वो घर के अंदर चले जाते हैं. So students, I hope you enjoyed this story. Now at the end of story you can see this story gave us the message to love and forgiveness. Okay, father also loved his younger brother as well as his elder
सन, ओके, उसके अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे दोनों को ही सेम वो प्यार करता था। एंड जब वो उसका छोटा बेटा जब रास्ते में से भटक जाता है और उसके आने की खुशी में वो फीस्ट रखता है, उसे भी वो इंजॉय करता है, ओके, और उसे माफ़ कर देता है। आई होप दिस यू हैव enjoyed this story. Okay, in the next video lecture we will discuss the exercise of the chapter. Till then you will read this chapter again and you will learn the word meaning of the chapter. So that's it. Goodbye everyone.